Welcome in A part of 6th lecture, and in this lecture we will cover the topic change of variable, and here my function is composite function of more than two variable. In 5th part A and part B we solve the question in which the function is composite function of one variable, total derivative topic. Okay, so in this 6th lecture we will cover change of variable, and these are the list of questions. The question 1 to question number 9, and waiting for 2 or 3 questions which you will ask in the class, and these are the questions which are your problems. So in today lecture we will solve question 1 and question 2 after defining the formula for change of variable and composite function of more than two variable. So now what is composite function? One variable we defined in the lecture 5th. Here suppose v is function of three variable r, s and t, and further r function of x, y, z, and s is again further function of x, y, z, and t is function of x, y, z. So here you can say that v is composite function of three variables x, y, and z. So here we may find curly v by curly of x, curly v by curly of y, and curly v by curly of z using the chain rule. कैसे लिखेंगे हम इसे? देखिए, फर्स्ट सपोज यू वांट टू फाइंड जैसे curly v by curly of x, तो फर्स्ट यू विल राइट v का डेरिवेटिव. v किसका फंक्शन है? r का. तो आई विल राइट curly v by curly of r, एंड r किसका फंक्शन है? दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड, और आप किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो? x के साथ. तो यू विल राइट curly r by curly of x. अब एक वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन यहाँ फिनिश होगा. ठीक है. नाउ देर इज सेकेंड वेरिएबल दैट इज x. तो v इज फंक्शन ऑफ s आल्सो, एंड s इज फर्दर फंक्शन ऑफ x. y का भी है, z का भी है, वो फिर नेक्स्ट के लिए करेंगे. तो हेयर v इज फंक्शन ऑफ s इज फंक्शन ऑफ x. सो यू विल राइट curly v by curly of s into curly s by curly of x. Similarly, there is one more variable that is t. v is function of t and t is function of x. हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. सो आई कैन राइट हियर curly v by curly of t and curly t by curly of x. ठीक है. अगर आपसे कहें कि ये फाइंड आउट करो तो v इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ y वेरिएबल आल्सो. सो यू कैन राइट curly v by curly of y is equal to same contribution, v is function of r is function of y also. तो you will write curly v by curly of r, और r का डेरिवेटिव now with respect to y, प्लस curly v by curly of, अब सेकेंड वेरिएबल किसका वेरिएबल है? v is function of s also. तो you will write curly v by curly of s and s का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस curly v by curly of t and t का partial derivative with respect to y. Now v is composite function of this variable also, so you can calculate curly v by curly of z applying the same procedure. curly v by curly of z, पहले v के पास जाएंगे. v is function of r, so you can partially differentiate v with respect to r. now आपको z के साथ डेरिवेटिव करना है, तो r is function of z also. curly हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि r जो है दैट इज not only depend upon z, it also depend upon x and y, plus curly v by curly of s and curly s by curly of z, curly v by curly of t and curly t by curly of s. सॉरी, ये आपका टोटल डेरिवेटिव किसके साथ कर रहे हो आप? z के साथ. ठीक है. तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस, एंड इफ़ योर वेरिएबल इज ओनली टू वेरिएबल तो आपके दो आ जाएंगे, अगर तीन है तो तीन आएंगे, अगर फोर है तो अकॉर्डिंगली आप इसे लिख सकते हैं. ठीक है. मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरी नोटेशन यही है. तो क्वेश्चन 1 जो है दैट इज बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन. आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट हियर. इफ v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई. ठीक है. prove that curly v by curly x, curly v by curly y, curly v by curly z is equal to 0. तो here
I will suppose that this is your R. Now to solve this question, let us take R is equal to y minus of z, and here I will take S is equal to z minus of x, and I will take t is equal to x minus of y. So here v is equal to function of r comma s comma t. So my v is function of three variable r, s and t, where r is equal to y minus z. So I can write here 0 into x, here I can write 0 into y, and here I can write 0 into z. ठीक है, तो r किसका फंक्शन होगा, x का, y का और z का. s इज फर्दर फंक्शन ऑफ x, y एंड z. t इज फंक्शन ऑफ x, y एंड z. ठीक है. नाउ करली v बाय करली x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका करली v बाय करली x का. तो करली v बाय करली x इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1. ये फॉर्मेट बन जाएगा ना आपका, जिसमें r की वैल्यू क्या है आपकी, y माइनस जेड प्लस 0x. And what is my s? S is equal to z minus x plus 0y, and the t is equal to x minus y plus 0z. तो करली v by करली x is equal to करली v by करली r by करली x. यानी कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं करली r by करली of x. There is no term of x, so its derivative is 0. You can calculate also करली r by करली of y. Its value is 1. And curly r by curly of z. Partially differentiate this with respect to z. So you will your answer is -1. Here देखिए curly s by curly of x. This is -1. And curly s by curly of y. It is 0. And curly s by curly of z. This is 1. And from t, curly t by curly of x, its value is 1. Curly t by curly of y, its value is -1. देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे ना तो x और z तो कांस्टेंट होंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, -1. देन curly t by curly of z, its value is equal to 0. Now I want to find the curly v by curly x plus curly v by curly y plus curly v by curly z is equal to 0. So इसके लिए मुझे curly v by curly x फाइंड आउट करना है. Here v is function of r, s and t, and r is function of x and y. So I will apply this formula. Now put all the values here. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, दिस इज curly v by curly of x. कैन वी कैलकुलेट curly v by curly r? नहीं, क्योंकि वो तो f की फॉर्म में है. तो you will write curly v by curly of r and curly r by curly of x, its value is 0, plus curly v by curly of s, this term, and curly s by curly x, its value is -1. So you will write here -1, plus curly v by curly of t into curly t by curly of x. तो curly t by curly x कितना है, that is 1. So it gives you minus curly v by curly of s plus curly v by curly of t. तो ऐसा कीजिए, write down this is 2 equation. It's my third equation, and these expressions, and curly v by curly of x from equation, write down this is equation number 4. ठीक है. Now use equation 2. लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, curly v by curly of y, it is equal to curly v by curly r. ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट curly r by curly of y, its value is 0. सो ये टर्म 0 हो जाएगी. तो इट इज़ curly v by curly of s, and the value of curly s by curly r by curly y, curly r by curly of y, its value is 1. सॉरी, ये एक्चुअली वैल्यू 1 है ना, तो पहले आएगा curly v by curly of r. आई एम राइटिंग दिस वन फर्स्ट. curly v by curly r by curly y, its value is 1. This is curly v by curly of s into curly s by curly of y, its value is 0. ठीक है. And curly v by curly of t, curly t by curly y, its value is -1. तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, curly v by curly y, I'm writing this term as it is here. It is curly v by curly of r
and it is minus curly v by curly of t. It's equation number 5. Now from equation 3, left hand side is curly v by curly z. So it is curly v by curly z as it is here is equal to curly v by curly r. Function is not given, so you can't calculate the partial derivative of v with respect to r. So you will write in symbolic form curly v by curly r, and curly r by curly z, its value is -1. So you will write here -1 plus curly v by curly of s, curly s by curly z, curly s by curly z is 1, curly v by curly of t, and curly t by curly z, its value is 0. So from this expression, curly v by curly z is equal to, this is minus curly v by curly r, and it is curly v by curly of s. Write down, this is equation number 6. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कर्ली v बाय कर्ली ऑफ x प्लस कर्ली v बाय कर्ली ऑफ y प्लस कर्ली v बाय कर्ली ऑफ z. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. या तो आप कह दो एडिंग 4, 5 एंड 6, एडिंग 4th 5th एंड 6th इक्वेशन. तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दोगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड. अब देखो यहाँ पे कौन है? माइनस का कर्ली v बाय कर्ली s एंड हेयर इज पॉजिटिव कर्ली v बाय कर्ली s. तो जब आप इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे दोनों कंबाइन हो जाएंगे. सो दिस इज माइनस कर्ली v बाय कर्ली ऑफ s, या आप लिख लीजिए इसको पूरा, देन यू कैन कैंसिल दिस वन. दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ 4th. नाउ आई एम राइटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ 5th. तो दिस इज कर्ली v बाय कर्ली r, कर्ली v by curly t. Right hand side of 6th is curly v by curly of r plus curly v by curly of s. Now this term with this term cancel. This term with respect to t and this term both are equal in magnitude and opposite in sign. So you can cancel these two and this value is cancelled by this one. So you will obtain here 0. हैंस द रिजल्ट. यही तो आपको प्रूव करना था. ठीक है, तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शंस करेंगे मोर देन 2 वेरिएबल. मोर देन 1 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे v किसका फंक्शन है? 3 वेरिएबल का, एंड r इज फर्दर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल. यहाँ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि यही होगा. सपोज v इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y एंड I said x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r एंड t. I can say y is equal to function of suppose this is new function that is psi r and t. So here v is composite function of 2 variable r and t. ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमारे इसके ऊपर बेस भी हैं. Now let us take the second question. If u and v are functions of x and y defined by x is equal to u plus e की minus v sin of u and y is equal to v plus e की minus v cos of u, prove that curly u by curly y is equal to curly v by curly of x. ठीक है, it is the most important question for BSc student. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कंपोजिट नहीं बनाएंगे, we will use this trick. देखिए हम क्या करेंगे, we will write the given expression here. तो these are the 2 equations which are given to me. अब यहाँ देखो, यहाँ u का मुझे पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ चाहिए और यहाँ v का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ चाहिए. मुझे प्रूव करना है कि बोथ आर इक्वल. तो फर्स्ट आई विल पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 एंड 2 दोनों को ही कर देंगे, 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ क्या आएगा, डेरिवेटिव x का x के साथ करेंगे तो 1. u का डेरिवेटिव, अब हमें पता है u इज फंक्शन ऑफ, यहाँ y है तो इसका मतलब x भी होगा, तो कर्ली u बाय कर्ली ऑफ x प्लस यहाँ पे v किसका फंक्शन है, u v एक्स वाई का. तो हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन u विद रिस्पेक्ट टू x. तो पहले आप cos u कर देंगे, u साइन u का डेरिवेटिव, और इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ली u बाय कर्ली x. देन साइन ऑफ u एज इट इज
फिर ई की माइनस वी, ई की वी का माइनस वी का डेरिवेटिव ई की माइनस वी इंटू इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव माइनस curly v by curly of x. Here curly u by curly x is here, curly u by curly x is here. तो you can write 1 कोफिशिएंट इसका है और इसका कोफिशिएंट कितना है e की माइनस वी cos ऑफ u curly u by curly of x. ठीक है, फिर आपका है curly v by curly x. So you can write this is minus sin u e की माइनस ऑफ v and this is curly v by curly of x. Take this one on the right hand side. This is equal to 0. So suppose this is equation number 3. Now partially differentiate second equation also with respect to x. When I differentiate this y with respect to x, तो जब हम करते हैं ना कि x के साथ करेंगे तो y is treated as constant, तो constant का डेरिवेटिव क्या देगा आपको 0. तो सेकेंड को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल ऑब्टेन 0 इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कर्ली v बाय कर्ली ऑफ x प्लस e की माइनस वी एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन u इंटू में u का डेरिवेटिव इज कर्ली u बाय कर्ली ऑफ x प्लस कॉस ऑफ u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई की माइनस वी इज कर्ली ई की माइनस वी इनसाइड टर्म का माइनस कर्ली वी बाय कर्ली ऑफ एक्स. अगेन हम इसको भी इसी तरह से फॉर्मेट में लिखेंगे कि ये यहाँ आ जाएगा कर्ली यू बाय कर्ली ऑफ एक्स हेयर प्लस देन आई विल राइट कर्ली वी बाय कर्ली ऑफ एक्स हेयर देन आई विल राइट सम कॉन्स्टेंट टर्म एंड इक्वल टू 0. तो राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट. तो यहाँ कर्ली यू बाय कर्ली एक्स है, इसका कोफिशिएंट कितना है दिस इज माइनस साइन यू ई की माइनस ऑफ वी कर्ली वी बाय कर्ली एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस कॉस ऑफ यू ई की माइनस वी एंड दिस इज कर्ली वी बाय कर्ली एक्स यहाँ भी है तो दिस इज प्लस 1. आई एम टेकिंग कर्ली वी बाय कर्ली एक्स आउटसाइड एंड देर इज नो कॉन्स्टेंट टर्म हियर इज 0 इक्वल टू 0. Now to simplify 3 and 4. देखिए दिस इज द वेरिएबल विच वी वांट टू फाइंड. ठीक है, तो यहाँ इसको आप मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे कैपिटल x प्लस b1 कैपिटल y माइ प्लस c1 इज इक्वल टू 0. देखो ये आपने किया होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस a2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इन x एंड y. How to find? We will start with the second term b1 b2 c1 c2 a1 a2 and b1 b2. तो जो ये पेयर होगा this gives you this variable x and this pair will gives you y and this gives you this constant term. ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं this is equivalent to x upon this multiply by this one. तो b1 c2 minus b2 c1. ठीक है, वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम वैल्यू पुट करके ही मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई आएगी c1a2 एंड माइनस ऑफ c2a1 इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है कांस्टेंट है तो 1 दिस विद दिस वन यानी कि a1 b2 एंड दिस विद दिस. तो माइनस का साइन जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो a2 b1. इन आवर क्वेश्चन दिस वैल्यू इज x and this is my y and this is my constant. So it's my a1, it's my b1 and c1 is minus 1. In fourth equation this is my a2, it is my b2 and my c2 is 0. So to simplify this I will write b1 b2. तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया. I first wrote this one b1 and this value is my b2, then c1 c2, then a1 and corresponding a2 and again b1 and this one is b2. तो ये जो पेयर आएगा आपका this one यहाँ मिलेगा मेरा वेरिएबल और वेरिएबल कौन है यहाँ मेरा कर्ली u by कर्ली ऑफ x and these two expression gives me कर्ली v by सेकेंड कौन है कर्ली v बाय कर्ली x एंड ये वाला पेयर आपको क्या देगा कांस्टेंट टर्म.
तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वन, जैसे मैंने ये सॉल्व किया, आई ऑब्टेन हियर कर्ली यू बाई कर्ली एक्स हियर, दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस जीरो, तो यहाँ आपको मिलेगा जीरो, this with this minus 1 and this minus becomes plus, so this term multiply with 1, I obtain 1 minus cos u e k minus v, and curly v equal to आएगा curly v by curly x, this with this one हो जाएगा, this minus and this minus gives you plus, तो e की minus v sin u, and 0 multiply with this, तो you will obtain 0, then there is 1, I multiply this term with this one, देखो बहुत सेम है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, एंड दिस टर्म विद दिस वन, तो दिस माइनस माइनस प्लस साइन यू साइन स्केयर यू, एंड ई की माइनस वी इट गिव्स यू ई की माइनस 2v, तो हेयर आई ऑब्टेन कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, 1 माइनस, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो cos of u is equal to curly v by curly x, you write sin u first, e की minus v second, this is equal to, यहाँ आपका 1 है, here is a plus b, a minus b, तो 1 minus, there is one term plus then one term negative, तो this with this, ये term negative है आपकी ना, तो a minus b का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर, तो ई की माइनस 2b, ये बनेगा कॉस स्क्वायर यू, और साइन स्क्वायर यू यहाँ है, तो ई की माइनस 2b दोनों से कॉमन ले लो, इनटू में क्या आएगा कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू, एंड कॉस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर यू क्या बन जाएगा 1, तो यू विल ऑब्टेन दिस वन, एंड हेयर इज कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, ये टर्म है आपकी, और ये कर्ली वी बाई कर्ली ऑफ एक्स है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, तो ये टर्म आपकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस आई ऑब्टेन इक्वेशन नंबर, दिस इज 4 एंड इट इज़ 5th, ठीक है। नाउ अगेन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, आई विल पार्शियली डिफरेंशिएट, दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आई नीड नाउ कर्ली यू बाई कर्ली वाई, तो पार्शियली डिफरेंशिएट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू, पहले x के साथ किया था ना, सेम प्रोसीजर करना है अब आपने, और इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो व्हेन आई पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इट इज़ 1, एंड u का बन जाएगा कर्ली u बाई कर्ली y प्लस ई की माइनस v एज इट इज, कोसाइन u का डेरिवेटिव हो जाएगा cos of u into curly u by curly of y प्लस sin u as it is, u भी फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो e की माइनस ऑफ v एंड इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो दिस इज कर्ली v बाय कर्ली ऑफ y, हेयर कर्ली u बाय कर्ली x, कर्ली u यहाँ पे देखो y के साथ कर रहे हो ना, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस इज 0, ये 1 नहीं आएगा, व्हेन यू पार्शियली डिफरेंशिएट y योर x इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, सो ये 0 ले लोगे आप, ठीक है। नाउ कर्ली यू बाई कर्ली वाई इज हेयर, कर्ली यू बाई कर्ली वाई इज हेयर, तो हमें इस इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है, तो आई एम राइटिंग दिस कर्ली यू बाई कर्ली वाई, इट्स कोफिशिएंट इज 1 हेयर एंड इट्स कोफिशिएंट इज कॉस ऑफ u e की माइनस ऑफ v, एंड दिस इज कर्ली u बाई कर्ली ऑफ y, एंड हेयर you will write plus, this minus sign I am writing here, sin of u e की minus of v, and its coefficient is curly v by curly of y, there is no constant sum, so I am writing here 0 is equal to 0, equation 4-5 हो गया, तो I am writing this is equation number 6. Now partially differentiate equation 2 विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, इट इज़ 1 इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, कर्ली v बाई कर्ली ऑफ y प्लस e की माइनस v, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन u, एंड इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव यानी कि कर्ली u बाई कर्ली ऑफ y प्लस
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कर दिया आपने। अब सेकेंड एज इट इज यानी कॉस ऑफ यू एज इट इज ई की माइनस वी का डेरिवेटिव ई की माइनस वी होता है, और इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव दैट इज इनसाइड टर्म माइनस वी का डेरिवेटिव क्या आएगा, करली वी बाय करली ऑफ वाई। ठीक है, तो इसे भी अब इसी फॉर्मेट में लिख दो। पहले लिखो करली यू बाय करली वाई, हेयर इज करली यू बाय करली वाई, only one term, so it gives you this minus sign of u into e की minus of v, and outside is curly u by curly of y, then curly v by curly of y. Here is 1, here is minus sign, it is cos of u e की minus of v, and outside है आपका curly v by curly of y. I am taking this one on the left hand side, so it is minus 1 is equal to 0. This is equation number 7. Now again comparing with a1 x a plus b1 y plus c1 is equal to 0, a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0. तो हम लिखते हैं b1 b2। तो आप करली u बाय ये वेरिएबल आपके जो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो b1 दिस इज़ माई b1 एंड दिस इज़ माई b2। तो यहाँ आपका ऊपर बन ही जाएगा, लाइन नहीं लगानी चाहिए थी, ये आएगा माइनस का साइन u ई की माइनस ऑफ v b1 b2, हेयर 1 माइनस कॉस ऑफ u ई की माइनस v b1 b2, c1 in this case is 0, c2 in this case is minus 1, a1 is 1 plus cos of u e की minus v, here is minus sin u e की minus v, a1 a2 and again b1 b2, तो माइनस के sin u e की minus v and this is 1 minus of cos of u e की minus v। ठीक है, जो फर्स्ट पेयर बनेगा दिस गिव्स यू करली यू बाय करली ऑफ वाई, आपका वेरिएबल करली यू बाय करली वाई है। सेकेंड जो देगा दैट विल गिव यू करली वी बाय करली ऑफ वाई, एंड द लास्ट विल गिव्स यू कांस्टेंट टर्म। तो हेयर आई विल ऑब्टेन करली यू बाय करली ऑफ वाई, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और माइनस साइन के साथ यहाँ, तो यहाँ तो जीरो है, ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, तो यू विल ऑब्टेन हेयर माइनस ऑफ साइन ऑफ u e की माइनस ऑफ v and this minus is plus, it's equal to curly v by curly of y over this 0 with this term 0 and this minus with this, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, that will be plus, so here you will obtain 1 plus cos of u e की माइनस ऑफ v। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस टर्म विद दिस वन। अब अगेन a प्लस बी, ये b एक तरह से बोथ टर्म सेम है ना, तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसको a प्लस बी a माइनस बी, तो ये देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर u एंड e की माइनस वी करोगे तो e की 2v, दिस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस आप लेके जाओगे, देखो माइनस माइनस प्लस और अपवर्ड जाएगा तो माइनस साइन, तो इट गिव्स माइनस, बोथ आर सेम, तो साइन यू एंड ई की माइनस वी का स्केयर है, तो स्केयर करोगे तो साइन स्केयर यू एंड ई की 2v बन जाएगा। सो हेयर यू विल ऑब्टेन करली यू बाय करली ऑफ वाई ओवर, इट इज साइन ऑफ यू ई की माइनस ऑफ वी, here is curly v by curly of y 1 plus cos u e की माइनस v and here is 1 over, देखिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर u e की माइनस 2v कॉमन, तो 1 माइनस ऑफ ये क्या दे देगा आपको e की माइनस ऑफ 2v। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 5 में क्या कैलकुलेट किया है, करली v बाय करली ऑफ x है ना, हमें प्रूफ तो यही करना था ना। I already calculated in equation number 5 curly v by curly of x, here I need curly u by curly of y, तो curly u by curly y ये और ये एक्सप्रेशन ले लो, तो यूजिंग फर्स्ट
and third ratio. So this gives you curly u by curly of y is equal to, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज साइन ऑफ u e की माइनस v बाय ये टर्म, एंड यूजिंग, क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ। तो राइट हैंड साइड ऑफ फिफ्थ किसके बराबर है, राइट हैंड साइड आपकी फिफ्थ देखिए क्या है, सेम है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन है, करली v बाय करली ऑफ x। सो दिस इज करली v बाय करली ऑफ x। यही तो आपको प्रूव करना था कि करली u बाय करली ऑफ y फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू करली v बाय करली ऑफ x। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये कह दे कि फाइंड द रिलेशन ऑफ करली u बाय करली ऑफ x इन टर्म ऑफ करली v ओवर करली y। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, तो दूसरे रेशियोज उठाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एंड इफ़ यू वांट मोर लेक्चर्स सो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय लाइकिंग एंड sharing these lectures among your friends. Thank you so much for watching.